तो मैं चाहता हूं कि अब हम परमेश्वर के वचन में चलें और उसके बाद मैं आप लोगों के लिए प्रार्थना भी करूंगा। So let's move to the word of God, and thereafter I will also pray for you. तो आज का जो विषय है वो है परमेश्वर के लिए जलते रहना। The topic for tonight is to burn for God. कीप ऑन फायर फॉर गॉड। Okay, keep on burning with the fire. Keep the fire of God. सो वैसा निकालिए पहला थिस्सलुनीकियों अध्याय 5 वचन 19। 5:19 of 1 Thessalonians. Quench not the spirit. आत्मा को ना बुझाओ। क्वेंच नॉट द स्पिरिट। Yes. तो आग बाइबल में बहुत मुख्य है। आग This is बाइबल में very बहुत मुख्य है। important tonight. परमेश्वर आग में से बात करते हैं। Okay, fire. Fire is very special, a special thing in the Bible. God speaks through fire. परमेश्वर आग में से दर्शन देते हैं। He even shows himself through fire. आग में से होकर वो अपने लोगों के बीच में उतरते हैं। He even comes in the midst of his people through fire. और नए नियम में आग को पवित्र आत्मा के आग के बपतिस्मा से जोड़ा गया है। And in the New Testament, the fire is also connected with the baptism of the fire. ये आग का बपतिस्मा पाने वाले लोग बिल्कुल असाधारण हो जाते हैं। And these people who receive the baptism of fire, they become unique, extraordinary. क्योंकि उनके जीवन से असाधारण काम होने शुरू हो जाते हैं। Because extraordinary works begin to be demonstrated through their lives. जब हम पुराना नियम में देखते हैं, परमेश्वर ने मूसा को मिलाप वाला तंबू बनाने के लिए आज्ञा दिया, तो परमेश्वर ने उसे कहा कि वेदी की आग कभी बुझनी नहीं चाहिए। When we see in the Old Testament, God commanded Moses to build the tabernacle. He commanded him that the fire in the temple, in that tabernacle, should never go out. अब नए नियम में जब आप परमेश्वर का मंदिर हैं, जब आप परमेश्वर की वेदी हैं, तो नया नियम पहला थिस्सलुनीकियों अध्याय 5 वचन 19 आज्ञा दे रहा है कि वो आग बुझनी नहीं चाहिए पर जलती रहनी चाहिए। In the New Testament, when you receive God, when you are become the temple of God, then in 1 Thessalonians chapter 5:19 it says, quench not the spirit. That means that fire must be burning always. इसीलिए आज मैं आपको परमेश्वर के लिए जलते रहने के लिए उत्साहित करने जा रहा हूं। Therefore, I'm going to encourage you to burn for Christ tonight. तो सबसे पहली बात, जो परमेश्वर के लिए जलते हैं वो राख नहीं होते। The first thing, those who burn for God, they never turn to ashes. वैसा निकालिए निर्गमन की पुस्तक अध्याय 3 वचन 2 और 3। Exodus chapter 3 verse 2 and 3. आप हिंदी में पढ़ देंगे? And the angel of the Lord appeared unto him in a flame of fire out of the midst of a bush. And he looked, and behold, the bush burned with fire, and the bush was not consumed. तो मूसा भेड़ बकरियों को चरा रहा था, तभी उसका ध्यान एक जलती हुई झाड़ी पर गया। While Moses was grazing his sheep, he suddenly saw a bush burning. उसने सोचा ये झाड़ी जल तो रही है, लेकिन जलकर राख क्यों नहीं हो रही? He saw the bush was burning, but it was not being, not turning to ashes. भस्म यानी राख। Yes, it's ashes. तो वो उस पहाड़ी पर गया और When he उसने went to that, वो उस पहाड़ी पर गया। he went to that mountain. उसने सबसे पहले उस झाड़ी के आसपास देखा कि राख है कि नहीं। He saw around that bush whether there was ashes of the bush.
उसे लगा होगा अच्छा हवा चल रही है, शायद राख उड़कर इधर उधर चली गई होगी। He might have thought because the wind was blowing, so the ashes might have blown away. इसलिए उसने थोड़ा दूर देखना शुरू किया कि राख है या नहीं। So he went little far and saw whether there were any ashes, पर उसे राख कहीं नहीं दिखी, but he could see no ashes anywhere क्योंकि वो झाड़ी परमेश्वर के लिए जल रही थी। because that bush was burning for God. वो झाड़ी मूसा को आकर्षित करने के लिए जल रही थी। That bush was attracting Moses. वो झाड़ी मूसा को परमेश्वर का उद्देश्य बताने के लिए जल रही थी। And that bush was burning to teach Moses the purpose of God. और जो परमेश्वर के लिए जलते हैं वो राख नहीं होते। And those who burn for God, they never turn to ash. अगर आप परमेश्वर के लिए जल रहे हैं तो आप कभी राख नहीं होंगे। अगर If आप you are परमेश्वर burning के for लिए जल रहे God, हैं, you will also never become ash. दोबारा सुनिए, ध्यान से सुनिए, अगर आप परमेश्वर के लिए जल रहे हैं तो आप कभी जलकर राख नहीं होंगे। If you are burning for God, you will never become an ashes. प्रभु यीशु मसीह आएंगे, The Lord Jesus Christ will return, जो मुर्दे हैं वो जी उठेंगे, and the dead shall rise in Christ. और जो हम जीवित हैं बदल जाएंगे, And we who are alive will be changed. लोग हमें ढूंढेंगे पर उन्हें हमारी राख भी नहीं मिलेगी। The people will look for us, but they will not even find our ashes. क्योंकि जो परमेश्वर के लिए जलते हैं वो राख नहीं होते। Because those who burn for God, they don't become ashes. हम देखते हैं कि दुनिया में कई लोग राख को, भस्म को, है ना, अपने शरीर पर लगाते हैं, उसे इस्तेमाल करते हैं। We see a lot of people in to their bodies. पर वो राख मुर्दों की राख है या जलकर खत्म हो चुकी चीजों की राख है। And that ashes is the ashes of the burnt people or the dead people or the things of this world which have been burnt. और जो कुछ मुर्दा है वो शैतान को दिखाता है। And whatever is dead, it indicates or symbolizes Satan. पर जो जलता रहता है और जो राख नहीं होता वही परमेश्वर का होता है। And one who keeps burning and does not turn to ashes is from God. इसीलिए मैंने कहा जो परमेश्वर के लिए जलते हैं वो जलकर राख नहीं होते। Therefore, I said, those who burn for God, they never turn to ashes. दूसरी बात, The second thing, जो परमेश्वर के लिए जलते हैं वो पानी को सुखा देते हैं। those who burn for God, they even dry up water. हो सकता है आप में से कोई ये कह रहा हो कि हाँ, हम में कुछ जलना शुरू हो गया। Maybe one of or some of you may have started saying, yes, something has started burning within me. लेकिन कहीं ना कहीं आपको लगता है कि नहीं, मेरे जीवन की मुश्किलें, मेरे हालात, मेरी परेशानियां मुझे उस आग को जलाए रखने नहीं देती। But somewhere, some things, the troubles and the difficulties in my life, they don't allow that fire of God to keep burning inside of me. आपको लगता है कि ये मुझे फिर से परेशान करेंगी और मैं फिर से आंसू बहाऊंगा और आंसुओं के उस पानी से वो आग बुझ जाएगी। And you think that they will again trouble me, and that the water of or the tears of from our eyes shall quench that fire, and I again will be quenched, but not so. मैं सहमत हूं। Agreed? हो सकता है कि आपकी मुश्किलें ज्यादा हो, आपके सताने वाले ज्यादा हो, तो भी उस समय पर आप पहला राजाओं की पुस्तक अध्याय 18 पढ़िएगा। Maybe your troubles are more, and the people who persecute you, they are more in number. But let's go to the 1 Kings chapter 18. मेरे लिए उसका 38 वचन पढ़ दीजिए। Verse 38 shall read, Then the fire of the Lord fell and consumed the burnt sacrifice and the wood and the stone and the dust and licked up the water that was in the trench.
हालेलुया। Amen. तो यहां देखिए, एलिया ने बाल के नबियों को चुनौती दी। Elijah challenged the priest of Baal. उसने कहा कि जिसका परमेश्वर स्वर्ग से आग गिराकर बलिदान को ग्रहण कर लेगा, उसी का परमेश्वर जीवित परमेश्वर होगा। Whose God shall send fire from heaven and burn these offerings will be the true God. तो पहली बारी बाल के नबियों की थी। And the first choice was given to the priest of Baal. उन्होंने एक बछड़े को बलिदान किया, उसे वेदी पर रख दिया और अपने ईश्वर को पुकारने लगे। They sacrificed an ox and laid it on the altar and began to call upon their God. लेकिन स्वर्ग से आग नहीं उतरी। But there came no fire from heaven. उन्होंने परमेश्वर की दुहाई देना शुरू किया, उन्होंने अपने आप को काटना शुरू किया, मारना शुरू किया, खुद को लहूलुहान कर लिया, पर आग नहीं उतरी। They tried to call upon and cry aloud and even cut themselves, their bodies, but the fire came never. फिर अगली बारी एलिया की आई। Then the next turn was of Elijah. एलिया ने एक वेदी को खड़ा किया। Elijah raised an altar. उसने उस वेदी के इर्द गिर्द एक बड़े खड्डे को बनाया। He made a big trench around the altar. उसने उस वेदी के ऊपर पानी डाला और उस खड्डे को भी पानी से भर दिया। And he poured water around that altar in the trench. बाल के नबी हैरान होकर पास आकर देखने लगे, अरे देखो क्या कर रहा है। The priest of Baal were surprised and came close to see what is this man doing. तभी एलिया ने एक छोटी सी प्रार्थना किया कि परमेश्वर, मैं तेरा दास हूं, आग उतर आए, और उसी समय पर आग उतर आई। Then Elijah prayed a short prayer to God. If I'm your servant, let the fire come from heaven. And उसी समय आग उतर आई, उस बलिदान को ग्रहण कर लिया और सारे पानी को सुखा दिया। And at the same time, the fire of the Lord fell and consumed the entire burnt offering. तो यदि आप परमेश्वर के लिए जलते रहेंगे, आपके विरुद्ध आने वाले निंदा का पानी, and if you will keep burning for God, and those who speak against you will not succeed. बीमारियों का पानी, and the water of sickness, कलेश का पानी, and the water of strife, सताव का पानी, the water of persecution, हर वो पानी जो आप सोचते हैं आपकी आग को बुझा देगा, वो खुद बुझ जाएगा। every water that you think will quench the fire in you will be quenched by itself. आपके विरोधी क्या उठेंगे कि यहोवा ही परमेश्वर है, क्योंकि उसके लोग जलते रहते हैं। Even your opponents will say that God is the only God because his people keep always burning. तो जो परमेश्वर के लिए जलते हैं वो जलकर राख नहीं होते। And those who burn for God, they don't turn to ashes. जो परमेश्वर के लिए जलते हैं वो पानी को भी सुखा देते हैं। Those who burn for God, they even dry up water. तीसरी बात, And the third thing, जो परमेश्वर के लिए जलते हैं उन्हें आग भी नहीं जला सकती। those who burn for God, they can never be burnt even with the fire. वैसा निकालिए दानियल की पुस्तक अध्याय 3 वचन 27। The book of Daniel chapter 3 verse 27. And it says here, and the princes, governors, and captains, and the king's counselors, being gathered together, saw these men upon whose bodies the fire had no power, nor was a hair of their head singed, neither were their coats changed, nor the smell of fire had passed on them. आमेन। तो परमेश्वर के नाम की महिमा हो। All the जो लोग glory to the name of the Lord. जो लोग परमेश्वर के लिए जलते हैं उन्हें आग भी नहीं जला सकती। Those who burn for God even are not burnt by the fire. शद्रक, मेशक, अबेदनगो
इन तीनों ने राजा की मूर्ति के आगे झुकने से मना कर दिया। Shadrach, Meshach, and Abednego, three of them refused to bow before the image of king. और राजा ने उन्हें आग के भट्टे में डालने की आज्ञा दे दी। And the king ordered them to be thrown into the fire of furnace. आपको बताऊं, शैतान ऐसे ही डराता है। And I शैतान tell ऐसे ही you, डराता है। even Satan, he makes us to fear him like this. वो ऐसे ही काम करता है। He does the same way. उस जब एक पिता अपने पुत्र को प्रभु यीशु मसीह के पास लेकर आया, जिसमें से चेले दुष्ट आत्मा को नहीं निकाल सके थे। When a father brought his son to Jesus, while his disciples could not drive the demon out of that boy, तो उसने यीशु से यही कहा कि ये कभी मेरे बेटे को, ये दुष्ट आत्मा कभी आग में तो कभी पानी में गिरा देती है। and he said that this demon sometimes put or throws his son down into water and sometimes into fire. और यही यहाँ पे सैनिकों ने किया। And the same was done by these servants of the king. उन सैनिकों ने शद्रक मेशक अबेदनगो के हाथ पैरों को बांधकर उन्हें आग की भट्टी में डाल दिया। These soldiers tied up Shadrach, Meshach, and Abednego and put them in the furnace. वहां लिखा है कि ये सैनिक उस भट्टे से निकलने वाली लो से ही जलकर मर गए। And it is written there, these soldiers were burnt at the mouth, the flesh that were coming out of the furnace with that. आप देखो, जो लोग आग की पूजा करते हैं वो उस आग में जल के मर गए। You see, the people who worship fire, they were burnt in that fire. लेकिन वो लोग जो परमेश्वर के लिए जलते हैं, उनको आग एक बाल भी नहीं जला सकी। But those who burn for God as fire, even this fire could not singe a single hair of their head. जब आप परमेश्वर के लिए जल रहे हैं तो आपको शैतान की लगाई हुई आग से नहीं डरना चाहिए। When you are burning for God, you should not fear of the fire that is set on by Satan. क्योंकि शैतान की आग से तो उन लोगों को खतरा है जिनमें परमेश्वर की आग नहीं है। Because only the people who do not have the fire of God in them will be victimized by this fire of Satan. पर जिनमें परमेश्वर की आग है, ध्यान से सुनिए, पर जिनमें परमेश्वर की आग है वो खुद शैतान के लिए खतरा है। But those who have the fire of God are even a danger to Satan. दोबारा सुनिए, ध्यान से सुनिए, जिनमें परमेश्वर की आग है वो खुद शैतान के लिए खतरा है। Those who have the fire of God, listen it again please, are a danger even to Satan. इस आग से शैतान डरता है, Satan fears this fire क्योंकि ये आग उसके कामों को जला देती है। because this fire works, burns away his works. ये आग उसके सैनिकों को, शैतान के सैनिकों को, यानी उसके भेजी हुई दुष्ट आत्मा को जला देती है। And this fire can even burn his soldiers and even the demons. और ये आग जो आपके अंदर जल रही है, ये शैतान के पूरे राज्य को जला सकती है। And the fire that is burning within you can burn the entire kingdom of Satan. तो तो जो परमेश्वर के लिए जलते हैं उन्हें आग नहीं जला सकती। So those who burn for God, no fire can burn them. चौथी बात, The fourth thing, जो परमेश्वर के लिए जलते हैं वो आत्मा में प्रार्थना करते हैं। those who burn for God, they pray in the spirit. वैसा निकालिए इफिसियों की पत्री 6वां अध्याय 18 वचन। Chapter 6 verse 18 of the letter to Ephesians. हर समय और हर प्रकार से आत्मा में प्रार्थना और विनती करते रहो और इसी के लिए जानते रहो कि सब पवित्र लोगों के लिए लगातार विनती किया करो।
praying always with all prayer and supplications in the Spirit, and watching thereunto with all perseverance and supplication for all saints. तो जो लोग शरीर में प्रार्थना करते हैं वो थक जाते हैं, वो बोर हो जाते हैं। Those who pray in the body, they get tired. पर जो परमेश्वर के लिए जलते हैं वो आत्मा में प्रार्थना करते हैं। But those who burn for God, they pray in the Spirit. आपको बताऊं, आत्मा में प्रार्थना करना आपके अंदर जलने वाली आग के लिए ईंधन का काम करती है। And I want to tell you that praying in the Spirit or burning with the fire, it works as a fuel in you. जब आप अन्य भाषा में प्रार्थना करते हैं, आपके ऊपर आग की जीभें फटने लगती है। When you pray in other tongues, the tongues of fire come on you. जब आप आत्मा में प्रार्थना करते हैं, आपके अंदर वो आग की लपटें उठने लगती है। When you pray in the Spirit, the flames of that fire begin to rise from you. अभिषेक आपके अंदर बढ़ने लगता है। And the anointing increases inside of you. फिर आप में से बहना शुरू हो जाता है। And then it begins to flow out from you. और आपको उसी अभिषेक के पीछे जाना है। And you have to move anointing. क्योंकि कुछ लोग गधों के पीछे चले जाते हैं, डोंकी। Some people go after donkeys. जब आप पहला शमूएल अध्याय 9 और 10 पढ़ते हैं, वहां पर जब शमूएल ने शाऊल को राजा होने के लिए अभिषेक किया, तो अपने पिता की खोए हुए गधे को ढूंढने निकला था। When we read in the 1 Samuel chapter 9 and 10, when King Saul was being anointed by Samuel, he was sent by his father to look for his donkeys. इसीलिए मैंने कहा कि कई लोग अभिषेक को छोड़कर गधों के पीछे चले जाते हैं। Therefore, I said, a lot of people leave the anointing and go after donkeys. वो गधा कुछ भी हो सकता है, एक नया फोन हो सकता है, एक गाड़ी हो सकती है, एक घर हो सकता है, हर वो संसार की कोई ना कोई वस्तु हो सकती है। The donkey could be anything, even a new phone, or the things of this world, even car or bikes or whatever. There could be a thing of this world that people go after. और जो लोग ऐसी चीजों के पीछे जाते हैं वही थक जाते हैं। And the people who go after such things get tired. पर याद रखो, जब आप अभिषेक के पीछे जाएंगे, ये सब चीजें आपको अपने आप मिल जाएंगी। But remember, when you go after anointing, all these things will be given to you all by itself. क्योंकि मत्ती 6:33 कहता है कि पहले उसके धर्म और राज्य की खोज करो, तो ये सब वस्तुएं तुम्हें अपने आप मिल जाएंगी। Because Matthew chapter 6:33 says, "First you seek ye the kingdom of God and his righteousness, and all these things shall be added unto you." तो आत्मा में प्रार्थना करते रहो, अभिषेक में बढ़ते रहो, परमेश्वर के लिए जलते रहो। Therefore, keep on praying in the Spirit, burning for God and seeking God. तो पांचवी और आखिरी बात, Fifth and the last thing, जो परमेश्वर के लिए जलते हैं वो वरदानों को प्रज्वलित करते हैं। those who burn for God, they flame the gifts of God. वैसा निकालिए दूसरा तीमुथियुस की पत्री अध्याय 1 वचन 6। 2 Timothy 1 and verse 6, chapter 1, verse 6. इसी कारण मैं तुझे स्तुति दिलाता हूँ कि तू परमेश्वर के उस वरदान को जो मेरे हाथ रखने के द्वारा तुझे मिला है प्रज्वलित कर दे। Wherefore I put thee in remembrance that thou stir up the gift of God which is in thee by the putting on of my hands. परमेश्वर के नाम की महिमा हो। The name of the Lord be glorified. मैं ऐसे कई लोगों को जानता हूं जिन्होंने वरदान पाया है, लेकिन उस वरदान को कभी प्रज्वलित नहीं कर पाए। I know many such people who have received the gifts of God, but they have not stirred them up. लोग उनके पास आते हैं, People come to them, वो उनके लिए प्रार्थना करते हैं, they pray for them, परमेश्वर काम भी करते हैं, Lord even works in them,
पर वो आग उनमें ना होने के कारण, परमेश्वर के लिए ना जलने के कारण वो अपने वरदान को कभी प्रज्वलित नहीं कर पाते। But since they do not have that fire or not burning for God, the gifts are not stirred up. पर जो परमेश्वर के लिए जलते हैं उन्हें पता है कि परमेश्वर ने मुझे वरदान दिया है तो मुझे उसे प्रज्वलित करना है। But those who burn for God, they know God has given me the gift and I must stir up and must flame into fire the gift that God has given me. क्योंकि वो जानते हैं मैं जितना अपने वरदान को इस्तेमाल करूंगा उतना मेरा वरदान चमकेगा। Because they know the more they use the gift of God, the more the gift will be increased in them. ये सच्चाई है कि जब आप अपने वरदान को इस्तेमाल करते हैं, इस्तेमाल करते हैं, इस्तेमाल करते हैं, वो उतना ज्यादा चमकता है। It is the truth that the more you use the gift God has given you, the more it shines, the more it shines. इसलिए आप अपने वरदान को अलग अलग जगह पर, अलग अलग लोगों के बीच में, अलग अलग तरीके से इस्तेमाल करते रहिए। Therefore, you continue using the gift that God has given you among different people at different places in different ways. अपने दिए को पैमाने के नीचे नहीं पर दीवट के ऊपर रखिए ताकि आपका प्रकाश सब जगह चमके। Do not keep the lamp under the bushel, but keep it on so that the light may shine upon all people. यही पौलुस तीमुथियुस को कह रहा है कि उस वरदान को प्रज्वलित कर दे। The same thing here is Paul saying to Timothy to stir up the gift of God. तो पौलुस की तरह आज शाम के समय मैं भी आप लोगों के लिए प्रार्थना करने जा रहा हूं और आपको आत्मिक उत्साह का एक नया अभिषेक, एक नया वरदान देने जा रहा हूं और मैं चाहता हूं कि आप उसे प्रज्वलित कर दें। I'm also like Paul and going to pray for you tonight that you receive the gift and stir it up for God. आप उसे अपने इलाके में, अपने चर्च में, अपनी कलीसिया में, अपने आसपास के लोगों के बीच में प्रज्वलित कर दें। Use it among your people nearby your church and in your region. Stir up this gift. याद रखिए कि जो परमेश्वर के लिए जलते हैं वो अपने वरदानों को प्रज्वलित करते हैं। Remember those who burn for God, they stir up their gifts for God. आइए अपनी आंखों को बंद करें, Let's close our eyes. अपने आप को परमेश्वर के हाथों में समर्पित कीजिए। Commit yourself into the hands of God. आपने जो वचन सुना, इस वचन के आधार पर अपने आप को परमेश्वर के हाथों में समर्पित कीजिए। The word that you have heard, according to this, commit yourself into God's hands. आपको परमेश्वर के लिए जलते रहना है। You have to burn for God. आपको उस आग को बुझने नहीं देना। You will never let this fire go out. पुराने नियम में परमेश्वर ने मूसा से कहा वेदी की आग बुझनी नहीं चाहिए। In the Old Testament, God spoke to Moses, the fire of the altar shall never go out. नए नियम आपको पहला थिस्सलुनीके 5 अध्याय वचन 19 आज्ञा देता है कि आत्मा को ना बुझाओ। In the New Testament, in the 1 Thessalonians chapter 5 verse 19, it commands आज us आपको that उस आग को जलाए रखना है। not the spirit. We have आपको to उस आग keep को जलाए this रखना fire है। on. We have to keep this fire on. याद रखिए जो परमेश्वर के लिए जलते हैं वो राख नहीं होते। And remember, those who burn for God will never turn to ashes. जिस तरह आपके प्रभु की हड्डियां किसी को नहीं मिली, उस तरह आपकी राख भी किसी को नहीं मिलेगी। Just like the bones of Jesus were never found by anyone, likewise, even you will not be found by anyone. जो परमेश्वर के लिए जलते हैं वो पानी को सुखा देते हैं। Those who burn for God, they can even dry up water. आपकी आंखें कितने आंसू बहाए, कितना पानी बहाए, Your tears that you have shed, as much, वो आपकी आग को बुझा नहीं सकते। they could not quench the fire in you. अगर आपके अंदर सच्ची आग है तो वो बुझ नहीं सकती। If you have the true fire, it cannot be quenched. अगर आप सच में परमेश्वर के लिए जल रहे हैं तो वो आंसुओं का पानी उसे बुझा नहीं सकता। If you are truly burning for God, the tears cannot quench that fire. जो परमेश्वर के लिए जलते हैं उन्हें आग भी जला नहीं सकती। Those who burn for God, even fire cannot burn them. शैतान की लगाई हुई आग से ना डरिए। Do not fear by the fire that is set by Satan.
क्योंकि शैतान खुद उससे डरता है जिसमें परमेश्वर की आग है। Even the Satan fears those who have the fire of God inside of them. जो परमेश्वर के लिए जलते हैं वो आत्मा में प्रार्थना करते हैं। Those who burn for God, they pray in the Spirit. वो आत्मा में प्रार्थना करते हैं। They pray in the Spirit. और जब आप आत्मा में प्रार्थना करते हैं, अन्य भाषा में प्रार्थना करते हैं, आप अभिषेक में बढ़ते हैं। जब आप आत्मा में प्रार्थना करते हैं, आप अभिषेक में बढ़ते हैं। जो परमेश्वर के लिए जलते हैं वो अपने वरदानों को प्रज्वलित करते हैं। आइए अपनी आंखों को बंद कीजिए, अपने आप को परमेश्वर के हाथों में दीजिए। आज अपने हाथ उठाएं और परमेश्वर से कहें कि परमेश्वर मैं तेरे लिए जल रहा हूं, तेरी आग मुझ में है परमेश्वर, मैं तेरे लिए जल रहा हूं परमेश्वर। थैंक यू जीसस, थैंक यू लॉर्ड, हालेलुया। धन्यवाद हो परमेश्वर। रेज योर हैंड, हालेलुया, रेज योर हैंड एंड टेल जीसस दैट आई एम बर्निंग फ्रॉम यू, हालेलुया, आई एम बर्निंग फ्रॉम यू, हालेलुया, आई हैव फायर फॉर यू लॉर्ड, आई एम ऑन फायर फॉर यू लॉर्ड। थैंक यू जीसस। रेज योर हैंड, रेज योर हैंड, रेज योर हैंड। रबना शंदना सखालमो दह सबेते त्रना शबो सदाहे सगलमन दना हस्सा बेशारुतो। आज ये आग जलना चाहिए, हालेलुया, ये आग जलना चाहिए, हालेलुया। अगर ये पिछले दिनों बुझ गई है, अगर ये पिछले दिनों कम हो गई है, आज ये जलना चाहिए, आज ये जलना चाहिए यीशु के नाम से, आज ये प्रज्वलित होना चाहिए यीशु के नाम से, हालेलुया। ये फिर से जल जाए, ये फिर से जल जाए, ये एक्टिवेट हो जाए यीशु के नाम से। रबो नम हशसाद हल्लक्रुदंदना त्रबो साहेदने शबो को हस्सा थम मना दिले रबोतना। मेरी आवाज के नीचे, मेरी आवाज के हालेलुया अभिषेक के नीचे, मेरी आवाज के इन्फ्लुएंस के नीचे जितने लोग हैं, मैं कहता हूं इसी समय फायर एक्टिवेट हो जाए, ये फायर एक्टिवेट हो जाए, ये फायर एक्टिवेट हो जाए यीशु के नाम से, हालेलुया। ये फिर से प्रज्वलित हो जाए यीशु के नाम से, ये फिर से जल उठे यीशु के नाम से, हालेलुया। थैंक यू लॉर्ड, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु, हालेलुया। थैंक यू जीसस, धन्यवाद हो परमेश्वर। अपने आप को परमेश्वर के हाथों में दीजिए, ये आग को जलने दीजिए, प्रार्थना के लिए आग को जलने दीजिए, हालेलुया। पवित्र आत्मा के लिए आग को जलने दीजिए, सबकाई के लिए आग को जलने दीजिए, सुसमाचार सुनाने के लिए आग को जलने दीजिए, हालेलुया। प्रभु दमय हशंदना सारा हशबो दगे करनंबना सबदना शर्रो हस्सा त्राहे। जलने दीजिए साग को, जलने दीजिए साग को, जलने दीजिए साग को, हालेलुया। थैंक यू जीसस, धन्यवाद परमेश्वर, धन्यवाद हो परमेश्वर, धन्यवाद हो परमेश्वर। पिता मैं किसी संसार की चीज के पीछे नहीं हूं, मैं आपके पीछे हूं परमेश्वर। ये आग को जलने दीजिए पिता, ये आग को जलने दीजिए परमेश्वर, हालेलुया। थैंक यू लॉर्ड जीसस, थैंक यू लॉर्ड जीसस, थैंक यू लॉर्ड जीसस, थैंक यू लॉर्ड जीसस, हालेलुया। धन्यवाद हो परमेश्वर, हालेलुया। थैंक यू जीसस, धन्यवाद हो पिता, स्तुति हो परमेश्वर, थैंक यू लॉर्ड, हालेलुया। अपने आप को परमेश्वर के हाथों में समर्पित कीजिए, परमेश्वर के हाथों में समर्पित कीजिए। थैंक यू लॉर्ड, धन्यवाद यीशु। इस समय हालेलुया अपने आप को परमेश्वर के हाथों में दे दीजिए। थैंक यू लॉर्ड। आंखें बंद कीजिए और आज प्रार्थना कीजिए। ये 1 मिनट का समय लीजिए और अपने लिए प्रार्थना कीजिए, इस आग को जलने के लिए प्रार्थना कीजिए। अगर आज इस शाम के समय परमेश्वर आपसे बात किया है, हालेलुया, परमेश्वर ने आपसे बात किया है, तो एक समय 1 मिनट लीजिए और इस समय अपने लिए प्रार्थना कीजिए। टेक दिस 1 मिनट एंड प्रे फॉर यू, प्रे फॉर योरसेल्फ टू, हालेलुया, टू कम फॉर द फायर, टू कम फॉर द लॉर्ड ऑन फायर, हालेलुया। Thank you Jesus, thank you Jesus, thank you Jesus, thank you Jesus, thank you Lord, hallelujah। इस 1 मिनट को इस्तेमाल कीजिए, अपने लिए प्रार्थना कीजिए। Pray for yourself, pray for yourself to be on fire for Lord, to be on fire for Lord, hallelujah। रबा शंदना साहोदो त्राला रोगो नंबलरे शबहस्सा त्रानागेदो हंदना मिरहस्सा बेशारोदना। Thank you Lord, hallelujah। धन्यवाद हो परमेश्वर, धन्यवाद हो परमेश्वर, धन्यवाद हो परमेश्वर, हालेलुया।